Hello students. Now I will interact with the students of 11th class. We are going to discuss regarding the judiciary in Indian system. What is how the Indian judiciary work? Indian judiciary, which is one of the organ of our government, how the laws are framed and how those are implemented, whether or those are proceeding in a systematic manner. The laws which are framed by the legislature and implemented by the executives can be those law may not be violated by any individual. If they are violated, the individuals or the personnel from the government are punished accordingly, because there is a provision of law that any person who will violate the norms, the laws framed by the legislator, either it may be the persons of the government, means person belonging from the legislature, if they can violate the laws, they are punished for that. It is a function of judiciary that any person in a nation will violate the laws, that is punished accordingly as per the norms and rules of the judiciary. So if there someone is violating some rules and law illegally, means we have discussed it in our earlier part that what is writ, what are different types of writs. We have discussed them that it is a formal written order is called as writ, or the letter of law issued by any court under the seal of the official to act, to do someone is called a writ, or anything that is issued under the authority, that is called as writ. किसी भी चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है, we have discussed it that if any authority, suppose it is Tahsildar or it may be Deputy Commissioner or the additional DTO, any authority who can give order on a plain paper, that cannot be honored by any implementing authority, because that is without seal and signature, and that is not honored by any individual. For systematic way, एक तरीका जो है कि किसी भी रिकॉर्ड को हम लाते हैं तो seal and signature is valid. Valid तभी है, the validity of any document is only and only when that is under the seal and signature of the issuing authority. Means अगर कानून ला कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्मल रिटन ऑर्डर देती है जिसे हम रिट कहते हैं, एंड रिट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. कोई भी मैटर वो 4 तरह का है: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सेरिशोरी. These are the 5 types of writs which a person, which a government, which any agency, there is a provision for any citizen, for any group, for any state, for any agency, for any company, there is a provision. If their fundamental rights, means fundamental rights are violated, if they are not given the provisions of any right, any fundamental right to education, there are different types of right. If those if there is in a country there is a violation of these fundamental rights, there is a provision of that in whose favor the violation is done. There is a provision that they will approach to the courts, to the different courts. There is Supreme Court, there is High Court, there are district courts, and there are subordinate courts, and there is a provision that benefit is given to the peoples who are violated
जिनका एहतसाल किया जा रहा है, जिनको अपने हकूक नहीं मिलते, तो वहाँ पे आइन में देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट हमारी कानून में, हमारी जुडिशरी में दे विल अप्रोच टू द कोर्ट एंड वो जो है वहाँ अप्रोच करेंगे अलॉन्ग विद द काउंसिल के अंडर या अंडर द काउंसिल वो अप्रोच करेंगे और वो जो है उनकी तरह तरह की जो रिट्स है उनमें कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस के थ्रू रिट्स दे सकते हैं, मैंडामस के जरिए से उसको रिट दे सकती है कोर्ट। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ को वारंटो एंड देयर इज ए दिस प्रोविजन ऑफ सर्जरी। जो है कोर्ट ये 5 किस्म के रिट देता है। अब हम थोड़ा सा चूँकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है एंड टुडे वी विल डिस्कस द 2 रिट्स। हम 2 तरह की रिट्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज हैबियस कॉर्पस एंड मैंडामस जो है, ये दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिट्स। आज जिनको इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो जहाँ तक हैबियस कॉर्पस की बात है तो हैबियस कॉर्पस जो है ये हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब वहाँ पे देयर इज ए सिस्टम दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट आर द एरिया ऑफ हाई कोर्ट। Under the Article 32, Supreme Court is under the Supreme Court under the Article 32 can issue the writs। जो है चूँकि कोई भी काम जो है there in our constitution there is a provision of articles under which article one is eligible, one is eligible to do what is to do, what is how the individual is empowered, what is under his jurisdictions, what is the field of area, area क्या है उसका क्या है और आर्टिकल कौन सा है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 कैन इशू दिस रिट्स। जो भी ये जो रिट्स हमारी हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन issue these writs under the article 32 and high court under the article supreme court जो है supreme court under article number 32 और हमारा high court जो है high court article 226 के तहत इन रिट्स को दे सकता है। and parliament under article 32 कैन empowered any other agency। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी ट्राइब्यूनल, किसी दूसरी एजेंसी को पावर दे सकती है कि वो इन रिट को इश्यूज कर सकती है। बिफोर 1950 से पहले मींस हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और फ्रॉम 1947 टू या 1948 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आफ्टर दैट अप टू 50s ओनली 3 हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स मीन्स कोलकाता, बम्बई एंड मद्रास आर अथोराइज टू गिव रिट्स। दीज रिट्स, ये जो रिट्स का प्रोविजन था कि सिर्फ 3 ही हाई कोर्ट दे सकते थे। बट आफ्टर दैट अंडर द आर्टिकल नंबर 232 and article number 226 Supreme Court and higher courts are empowered to give these writs। all the high courts of and Supreme Court तो एक ही है, वो तो authorized, that is empowered by the parliament, but all the high courts of the states, the states in which there is a high court, in all the states of India there is not the high courts are not available। we are not here concerning with that how many courts are there, but we will discuss over here the how the high court is empowered to give to issue these writs under the article। all the high courts of Indian states under the article number 226 can issue these 5 types of writs। and if there is any other agency which is empowered by the Parliament of India
whether that is a tribunal, that is other any other agency, but that must be empowered by the Parliament of India. They can also authorized to give the writs if that is done, that is authorized by the Parliament of India under article number 32. कोई भी दूसरा ट्रिब्यूनल होगा, कोई भी दूसरी एजेंसी होगी जिसको एम्पावर किया होगा पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल नंबर 32, वो रिट इशू कर सकती है, बट दैट मस्ट बी एम्पावर्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल नंबर 32. तो फिर इसमें जो है अब हम हैबियस कॉर्पस की बात जहाँ तक करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप, एंड दिस हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव ए बॉडी. टू हैव ए बॉडी मीन्स से हम मतलब ये समझते हैं, सपोज एनी बॉडी, एनी इंडिविजुअल is walking on a road. Suppose a police can detain that person in their custody. Suppose कोई भी पुलिस आर्मी जो है किसी आम आदमी को चलते हुए अपने उसे डिटेन कर लेती है. Suppose a person is coming towards the home from his duty and that person is detained by police or any other agency, means उसको कोई उठाते हैं, they detain that person, and there is a provision of law that for suppose A is a person, A एक ऐसा आदमी है जिसको किसी ने डिटेन कर दिया और A को प्रोविजन है कि B को भेजेगा. A सपोज एक आदमी अपने किसी को भेजेगा और that B will approach to the court under the habeas corpus. अंडर द हेबियस कॉर्पस कि हमारे इसको डिटेन कर लिया है और उसकी बॉडी जो उनके उधर है, तो टू हैव ए बॉडी एंड कोर्ट अंडर द हेबियस कॉर्पस क्या करेगा कि द कोर्ट विल, आइदर द कोर्ट में बी सुप्रीम कोर्ट, आइदर द कोर्ट इज ए हाई कोर्ट, आइदर इट इज ए ट्राइब्यूनल और एनी अदर एजेंसी विच इज अथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू गिव दिस रिट, एंड दिस हेबियस under the habeas corpus, that individual who is detained by the police, he will on behalf, the B on behalf of A will approach to the court and he will submit a document along with his counselor. He will bring a habeas corpus. This means the court will direct to the authorities who have detained that person to present that body in a court. इसीलिए इसको बोला जाता है means to have a body. To have a body means किसी इंडिविजुअल को किसी ने उठाया है और उसको कोर्ट में पेश करना होता है. दिस रिट कैन बी शॉर्ट, ये रिट जो है इशू कोर्ट करेगा. सपोज ये ए है और बी को बी जो है बी ए को डिटेन किया हुआ है. ए इज डिटेन्ड बाय ए पर्सनल पुलिस पर्सन किसी को, और बी जो है बी ए के लिए कोर्ट में जाएगा इन हेबियस कॉर्पस. बी जो है अंडर हेबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट से जो है उस आदमी को फ्री करवा के लाएगा अंडर द हेबियस कॉर्पस. ये इसको फ्री करके लाएगा. क्यों करेगा? क्योंकि देयर इज ए प्रोविजन कि वो ए जो है इंडिविजुअल को डिटेन किया हुआ है. ए इज ए कैन बी डिटेन्ड इंडिविजुअल बाय द पब्लिक. सपोज इसको किसी ने ए को जो है ए इज डिटेन्ड अ पर्सन. अच्छा, बी जो है बी इज एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव. बी जो है ए के बी इज एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए. ए जो है अपने बदले में, सपोज मुझे पुलिस डिटेन कर लेती है और मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा कोई गार्डियन पुलिस कोर्ट में अप्रोच करेगा, क्योंकि ही विल नॉट अप्रोच डायरेक्टली टू द पुलिस. देयर इज नो प्रोविजन. अगर पुलिस मुझे उठा के लेती है, मैं अपने काम से आ रहा था और देयर इज नो प्रोविजन दैट माई रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैं भेजूँ वो डायरेक्ट थाने में जाएगा, ऐसा नहीं है. देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन
under the habeas corpus. One of the writ that is a habeas corpus means my representative will ask to the court that our A has been detained by the police, detained by any group. Now the court under the habeas corpus will issue a writ and that court will give direction to the detaining personality. जो जिन्हें डिटेन किया हुआ है उस पर्सनल को, वो उसे डायरेक्ट करेगा कि बॉडी को प्रेजेंट करो इन ए कोर्ट. कोर्ट में बॉडी को प्रेजेंट करना है. देन कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट विल एग्जामाइन द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन एंड देन कोर्ट, जब कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, कोर्ट विल confirm the legality either the person who is detained by the any agency, is there any legality, क्या इसको लीगली लिया है, क्या इसने कोई अपराध किया है. If the person has been detained under legality, अगर लीगली उसको रखा गया है, then he will be given punishment accordingly as per the rules. अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको मिलेगी, उसको पुनिशमेंट, उसको सजा मिल सकती है. अगर इफ इट इज फाउंड बाय द कोर्ट उस पे जो है वो देखेगा, अगर दैट पर्सन हैड बीन डिटेन इलीगली, देन दैट विल सेट ए फ्री. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर any individual is detained by someone has detained any individual, then court will issue a habeas corpus and any other types of writ to produce that body, that person free which is detained earlier. अगर illegally है फिर उसको detain से उसको free कर दिया जाएगा. Suppose that is detained by illegality. If लीगलिटी इज कन्फर्म, अगर उसको लीगली रखा गया है, देन उसको अंडर द नॉर्म्स किया जाएगा. उसके बाद जो है कोर्ट उसको फ्री करवा नहीं सकता अगर वो उसकी लीगलिटी हो पकड़ने में. देन नेक्स्ट जो आ गया मैंडामस है. दूसरा हमारा हम स्टडी करेंगे मैंडेमस. मैंडेमस इज ए सेकंड टाइप ऑफ रिट. ये दो, इसमें टू गिव कमांड मीन्स, मैंडेमस मीन्स टू कमांड, टू कमांड मीन्स आई कमांड. एक कमांडर है, ही कमांड्स, द अदर फॉलोज. इट मीन्स मैंडेमस मीन्स टू कमांड. टू कमांड मीन्स द कोर्ट इज ए कमांडर. दिस टाइप ऑफ रिट ये जो है ये बोलता है कि मैं कमांड करता हूं. कमांड कैसे किया जाएगा? कमांड इज इशूड बाय द कोर्ट जो है इशू करेगा जिस रिट का नाम कमांड है. एंड द कमांड मीन्स वी कमांड, आई कमांड. वो कागज बोलेगा, वो पेपर बोलेगा, जो कोर्ट ने दिया हुआ है वो बोलेगा कि आई कमांड. मीन्स वो किसको दे सकता है? कमांड इज इशूड बाय द कोर्ट टू. किसको दे सकता है? अब देखो कोर्ट कमांड किसको देगा? सपोज वी कमांड मीन्स, इसको आप अगर याद रखेंगे कि सपोज इन ए स्कूल में कोई मैडम है, आपकी स्कूल में कोई मैडम है, तो मैडम काम नहीं करती है और उसे जो बोलने वाला होगा कि उसको याद रखना है आपने ऐसे कि हमारे स्कूल में मैडम है, वो काम नहीं करती है और उसे बोला जाता है कि आप काम कीजिए. और काम किस से करना है, कौन से एरिया है जिसको बोला जाएगा. कोर्ट किस को बोल सकता है? वो पब्लिक ऑफिशियल को बोल सकता है, पब्लिक बॉडी को, कॉर्पोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स को और गवर्नमेंट्स को वो बोल सकता है. चाहे वो किसको कमांड कर सकता है. मीन्स सिर्फ ये मैंडामस इज आल्सो कॉल्ड एज अवेकनिंग सेल. इसको मैंडामस जो है ये रिट है, इसको जो है अवेकनिंग कॉल्स बोला जाता है. इट इज आल्सो नोन एज अवेकन कॉल्स. अवेकन कॉल्स क्या होगा? किसी को इन्फॉर्म करना. सपोज हम जाएंगे तो हमारा
फैमिली मेंबर सोया हुआ है, हम इसको अवेकन करेंगे कि जागो, उठो, काम करो। सपोज हम दूसरा बोल देंगे कि ये कैसे दिया सकता है कि कोई आदमी, हम बोल देंगे उसको परफॉर्म कीजिए आप ड्यूटी। सपोज मैं जो हूँ, मेरा ऑर्डर मेरे हायर अथॉरिटीज ने किया हुआ है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस मैंडामस दैट I am appointed, I am deployed here in this office to deliver online lectures. Suppose I will refuse to do this. Suppose मैं नहीं आऊँगा या मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगा। मेरी ड्यूटी किसी स्कूल में लगाई है, वहाँ मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा नहीं। अब जब मैं नहीं जाऊँगा तो बाई कोर्ट, अब मेरा तो वहाँ पे एक सिस्टम है कि मेरा हेड जो है, मेरा डीडीओ जो है, मुझे फोर्स करेगा, मुझे कमांड, मुझे अवेकन करेगा कि आप काम कीजिए। या मैं स्कूल में जाके, मैं स्कूल में बैठा रहता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मीन्स कमांड हो गया देना, जो बोलेगा कि आप काम कीजिए। यहाँ पे कोर्ट की बात जहाँ तक है कि सपोज ये पब्लिक ऑफिसर को दी जाती है, पब्लिक बॉडी को बोला जाता है, ये कॉरपोरेशन है कोई, उसे बोला जाता है, ये इंफीरियर कोर्ट से उनको कमांड मैंडामस दी जाती है और गवर्नमेंट को दी जाती है। सपोज नंबर 1 हम बोल देंगे कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त, सपोज यहाँ हमारे बिजली नहीं है, यहाँ इस ऑफिस में बिजली नहीं है, तो बिजली कंटिन्यूसली नहीं आती है, तो वी विल अप्रोच टू द कोर्ट। हम इस डिपार्टमेंट के खिलाफ अप्रोच करेंगे एंड द कोर्ट विल ऑर्डर। हम कोर्ट में जाएंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल अप्रोच द कोर्ट एंड अप्रोच विल गिव ए मैंडामस। वो एक कमांड दे देगा उस डिपार्टमेंट को कि आप जाए एंड यू विल परफॉर्म योर ड्यूटीज दियर, आप वहाँ पे दीजिए, अवेलेबल करो। फिर दूसरा हमारा एक पानी का महकमा है। सपोज आए दिन हम देखते हैं, इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द प्रोटेस्ट, देयर आर प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द वाटर सप्लाई। वहाँ पे किसी, आप जाओ सिटीज़ में, बोलते हैं जी यहाँ पीने का पानी नहीं है, उसके लिए रिट की जाती है एंड एज पर द मैडमस दोज ऑफिशियल्स विच आर एंगेज फॉर प्रोवाइडिंग द वाटर और द हाइट, ये जो हमारा पानी का महकमा है, कोर्ट उसे डायरेक्ट करेगा कि आप क्या कीजिए, आप जाइए और वहाँ उनको साफ पानी पिलाइए। आप उनको गंदा पानी दे रहे हैं तो आप इनको साफ पानी प्रोविजन है। तो दिस इज कॉल्ड एड मैंडामस, जैसे कमांड देना किसी चीज़ को, किसी ऑफिशियल को। और हायर, जैसे सपोज हमारा लवर कोर्ट है, तो लवर कोर्ट में हमारी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट जो है उसे टालता है, उसको एडजर्न करता है, तो हम जाके अप्रोच करेंगे हायर कोर्ट को, हाई जो उससे ऊपर होगा। सपोज द केस इज proceeding of cases in the subordinate courts, we will go and approach to the district courts and district courts will issue the मैंडामस जो है, मैंडामस वो इशू करेगा and there is a provision, he will give direction to the lower courts to do duties। आप कीजिए ऐसे, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप केस को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए ताकि हम जो है वो इसे अच्छी तरीके से निभाएंगे। तो दिस वर रिगार्डिंग द मैंडामस। इससे जो हमारे ये आज के 2 कंप्लीट हो जाते हैं, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ जो है द रिमेनिंग 3 जो तीसरे हमारे और हैं, हमारे चूँकि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 2 रिट्स वी हैव कंप्लीटेड। एक हो गया द हैबियस कॉर्पस, जो बॉडी को प्रेजेंट करना होता है, अगर किसी को डिटेन किया हुआ है तो उसे उसकी बॉडी जो है कोर्ट में हाजिर करनी है, चाहे क्या उसे कहीं मारा तो नहीं है, कहीं क्या उसको प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। और फिर नेक्स्ट जो है, कोई हमें महकमा पानी नहीं दे रहा है, हमें बिजली वाला नहीं दे रहा है, तो देयर इज ए प्रोविजन दैट कोर्ट विल इशू ए रिट ऑफ मैंडामस एंड डायरेक्ट देम, अवेकन देम टू डू परफॉर्म एक्टिविटीज। इसके लिए आप कीजिए। तो ये 2 के दरमियान था। नाउ द रिमेनिंग 3 विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।